10-mark question. Prophet's interaction, yeah, Muslims' interaction with the Munafiqeen or hypocrites of Medina. First of all, you will introduce the hypocrites and Munafiqeen. Their leader name has to be mentioned, which I did not mention here, Abdullah bin Ubay. And you're also going to talk about why Abdullah bin Ubay converted to Islam apparently, because the Prophet ﷺ arrived in Medina, he was going to be crowned as the king of Medina. And he wanted the support of the Muslims because he saw the Muslims are getting fame, the Jews are supporting them. To get more than support, he needed to show a support to the Muslims, and he accepted Islam apparently. You may add a reference of Quran about Munafiqeen. Okay. Then Battle of Uhud, you know what was the role of Munafiqeen in Battle of Uhud. You will make one paragraph about it. Then you will move on to Battle of Trench. This will help you in Battle of Trench as well. Okay. What was the role of Munafiqeen in the Battle of Trench? Exactly. They were looking for excuses to leave battlefield because they were thinking Muslims are going to be defeated. So you will talk about that. 300 Munafiqeen. Oh yes, यहाँ पे 300 Munafiqeen जो आएगा वो point आ जाएगा. Battle of Trench हो गया. When we talk about Hazrat Aisha's topic, there was a false accusation on Hazrat Aisha because of an incident. Actually, Muslim army was coming back from a expedition and the army stopped. फिर वो पूरा वाकया है. The caravan missed Hazrat Aisha. She was taken back by one companion. So Munafiqeen made false accusation on Hazrat Aisha's character. So this is also going to be discussed there. They took the advantage of that to defame Hazrat Aisha radiallahu anha. Allah revealed the Quranic verse to support her chastity. Masjid-e-Zirar, we discussed in Battle of Tabuk expedition. Muslims were returning back. Prophet ﷺ demolished one masjid. Either you can write Ad-Darar or you can write Zarar. That's the masjid where it's discussed in Quran as well. Okay. Funeral prayer of Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay died. He was the leader of the hypocrites. Allah mentioned the list of the Munafiqeen to Holy Prophet ﷺ. Prophet knew he is a Munafiq, but Prophet ﷺ, his son, who was a true believer, he came to Holy Prophet and asked, please lead Janazah prayer of my father. Maybe he will be forgiven. The Prophet ﷺ led his father's Janazah. The Prophet led Abdullah bin Ubay's Janazah. Even he was the leader. Hazrat Umar का यहाँ पे role है. आपको Hazrat Umar में वो point मिलेगा. Holy Prophet was going to lead the prayer. Hazrat Umar was dragging him back. But Prophet ﷺ wanted, Prophet ﷺ wanted कि शायद इसकी forgiveness हो जाए. So Prophet ﷺ led the Janazah prayer of Abdullah bin Ubay. And Allah revealed the Quranic verse. Allah said, if you lead his janazah prayer 70 times, even he is not going to be forgiven. That's a reference of Quran. Ab add karna chahe kar sakte. Prophet did one more favor for Abdullah bin Ubay. What was that? Other than Prophet led his janazah prayer, Prophet ne ek favor aur diya tha Abdullah bin Ubay ko. At the time of his death, after his death actually, he gave his shirt, like the upper piece of the sheet, to enshroud his body. कि शायद इसकी forgiveness हो जाए, but even though this is again 4 mark के questions में भी आता है कि teaching के prophet's connection या prophet's things are not enough until the person himself or herself is on the right path. ये एक 10 mark का question है which is never asked but it could be asked in Prophet's life in Medina. So you can say unexpected questions which could be expected. You don't have to worry a lot about it because you already know it. You just need to structure it. आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं. आपने Battle of Uhud पढ़ा हुआ है, आपने Battle of Trench पढ़ा हुआ है, आपने हज़रत आयशा का टॉपिक पढ़ेंगे. The character जो उनकी against planning थी, plotting थी, वो भी आएगा. And then Masjid-e-Zirar का demolishment, Abdullah bin Ubay, हमने सारा discuss किया हुआ. But you just need to plan your answer. Second, unexpected question which could be expected. By the way, इससे मिलता हुआ एक question आया हुआ है. Question गौर से पढ़ना है. Describe the relationship between Quraysh of Makkah and Muslims of Medina between 622 and 632 AD. अब Prophet ﷺ मक्का से मदीना आ गए हैं, उसके बाद Prophet's interaction with Quraysh of Makkah. So definitely we will be thinking about battles. अब 3 battles हैं बड़ी, फिर Treaty of Hudaybiyah, Conquest of Makkah. You won't be writing all of it. You need to plan your answer. आपने इसको क्या करना है? Details को cut down करना है. And how you are going to cut down the details, that's the strategy here. अब I suggest the students arrival of Muslims here in Medina and Quraysh efforts to create trouble. उसमें आपका नखला इंसिडेंट भी आ जाएगा जिसमें कुरैश की तरफ से कांस्टेंट अटैक्स हो रहे थे. प्रॉफिट ने बॉर्डर पे आर्मी को डिप्लॉय किया, क्लैश हुआ, डेथ ऑफ कुरैश लीडर, अल्लाह रिवील परमिशन टू डू जिहाद. अब बदर आप देखें, मैंने इसको बहुत ब्रीफली यहाँ पे कवर किया हुआ. एंड दिस इज व्हाट यू नीड इन बदर. ओके, अगर बाय द वे अगर बदर पे 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, कोई स्टूडेंट इतना भी लिखे उसको भी 3 or 4 out of 10 मिल जाता है. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर हमें शॉर्टकट आंसर चाहिए, हमने बस किसी तरह से मार्क्स लेने.
तो बदर की अगर ब्रीफ समरी चाहिए वो ये है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके ऊपर अकेले 10 मार्क का क्वेश्चन इनफ नहीं है, बट इट विल मे टेक यू टू लेवल 2। यस, नहीं टेस्ट अभी 2 चेक की ऑनलाइन वालों को पहले मैं कर रहा था क्योंकि हार्ड कॉपीज चाहिए थी, वो मेरे पास यहाँ नहीं थी। आपका तो वैसे भी बाद में मिला है, मुझे मिला ही नहीं अभी तक, कल आज लूंगा ना, बिकॉज आई विल कलेक्ट इट टुडे। ओके ओके, बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ ओहद ब्रीफ डिस्कशन है और आपको बहुत अच्छी समरी भी मिल जाएगी टू रीकैप एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। देन वी हैव बैटल ऑफ ट्रेंच, वालेकुम सलाम, बैटल ऑफ ट्रेंच, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, परफेक्ट आंसर है आखिर में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, यही आंसर है, इससे ज्यादा डिटेल में जाएंगे यू वोंट बी एबल टू मैनेज टाइम। इट इज नेवर आस्क्ड इन सच अ वे, इट वाज आस्क्ड विद अ लेस टाइमलाइन देयर, तो आपके पास वो टाइमलाइन लिमिटेड थी, वहां पे सिर्फ शुरू की 2 बैटल्स थी या 3 बैटल्स थी। अभी ये पूरा क्वेश्चन भी आता है, so that is the method you will adopt. One more question which could be expected, write about the ways, या आया हुआ है, इससे मिलता हुआ क्वेश्चन है। yes, हाँ बस नहीं, इसमें हमने ख्याल करना है, क्वेश्चन अपने पहले समझ लें। About the ways in which Holy Prophet interacted with non-Muslims. Charter of Medina. What else? Walaikum salam. What else? Treaty with Jews. Okay. What else? Yes. Okay. Battle of Mota. Letter to Kings. After his move to Medina. इंटरेक्शन जो है ना, कहाँ से शुरू हुआ? लेटर टू किंग्स से बात शुरू हुई, ठीक है। लेटर टू किंग्स भी यहाँ ऐड हो सकता है। आई थिंक आई मेंशन इट हियर। ये आउटलाइन है, आपके सामने आउटलाइन है, और ये क्वेश्चन सीआई में थोड़ा डिफरेंटली आया था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है इट्स वेरी इजी टू आंसर इट इफ यू नो द आउटलाइन। चार्टर ऑफ मदीना, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेकिन थोड़ी सी ना डिफरेंट वर्डिंग है, लेकिन अगेन दैट्स द वे हाउ यू विल डील इट। एक पैराग्राफ चार्टर ऑफ मदीना, सिर्फ ज्यूज वाला पार्ट लिखना आपने, ब्रदरहुड बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार नहीं लिखने गए। फिर हाउ द ट्राइब्स ब्रोक द ट्रीटी, जो भी आप डिटेल में मेंशन करेंगे। अब प्रॉफिट का खाली बैड बिहेवियर, स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं है नॉन मुस्लिम के साथ, इट वाज अ गुड बिहेवियर एज वेल। वी हैव एग्जांपल्स लाइक प्रॉफिट। यस, ये रहा, ये देखें, ग्रेट, ये वही चीज है। रीपेड द लोन ऑफ द ज्यू। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते कि ज्यू ने हमारे साथ फ्रॉड किया तो हम उनके पैसे लेकर भाग जाएं, नेवर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट डू दैट। और ये पॉइंट हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुड काइंडनेस के ऊपर ऐड करते हैं। हजरत उमर की एग्जांपल के साथ रिलेट करता है कि हजरत उमर वाज एंग्री व्हेन द ज्यू वाज मिसबिहेविंग विद होली प्रॉफिट, प्रॉफिट सेड पे हिम मोर because you have scolded him. So ये होली प्रॉफिट का बिहेवियर। अच्छा, कुछ बुक्स में प्रॉफिट यूज्ड टू विजिट द ज्यूज ऑफ मदीना, कुछ बुक्स में ही यूज्ड टू फॉरवर्ड द फूड, जो खाना था अपने नेबर में ज्यूज को भेजते थे, तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मेन एग्जांपल क्रिश्चियंस ऑफ नजरान, आई स्किप्ड इट लास्ट टाइम, आई सेड कि आप बाद में इसको एक दफा देखें, लेकिन ये आपको कई जगह नजर आएगा, मुस्लिम्स इंटरेक्शन विद क्रिश्चियंस ऑफ नजरान। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, क्रिश्चियंस ऑफ नजरान का इवेंट था क्या। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का लास्ट ईयर था, 10th ईयर ऑफ हिजरा की बात है। डेलीगेशन आया और आई डोंट नो, कुछ स्कूल्स में THQ, टीचिंग ऑफ होली कुरान पढ़ाया जाता है, तर्जुमा होली कुरान पढ़ाया जा रहा है बिकन हाउस की ब्रांचेस के अंदर। वहाँ पे सूरह आले इमरान के साथ ये डिस्कशन हुई हुई है, ग्रेड 11 के सिलेबस के अंदर है वो टीचिंग ऑफ होली कुरान जो है, उसके अंदर ये वाकया एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन जाहिर है आपको इतनी डेप्थ में नहीं जाना। नजरान यमन का इलाका, यमन साइड से कुछ डेलीगेशन आया होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो सारे क्रिश्चियंस थे। They wanted to debate Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam about God. They wanted to discuss about it. Prophet sallallahu alaihi wasallam tried to convince them one way or another, but they were not willing to accept and they did not believe in what Prophet sallallahu alaihi wasallam जो कह रहे हैं उनको इस पे यकीन ही नहीं आ रहा था। What did they do? They asked Holy Prophet to go to an event. It's called मुबाहला। मुबाहला क्या होता है? Prophet sallallahu alaihi wasallam और जो delegation of Christians है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को लेके आएंगे और कर्ज करेंगे, अगर झूठे हैं तो उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए अपनी फैमिली, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत फातिमा और उनकी जो फैमिली, उनको बुलाया। अब जो क्रिश्चियन किंग्स थे, जो लीडर्स थे, नॉट किंग्स, जो उनके क्रिश्चियन स्कॉलर्स थे, दे रियलाइज कि अगर ये रियल प्रॉफिट नहीं होता तब तो ये भाग जाता, नहीं करता। ही इज अ रियल प्रॉफिट, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग इट। So they realized कि Prophet sallallahu alaihi wasallam is a true prophet. Up, they were not willing to accept Islam. They said we want to have a peace agreement with you. Prophet sallallahu alaihi wasallam agreed on that. और ये हम क्यों पढ़ाते हैं treaty with Christians of Najran? ये जो delegation आया था, they were Christians. But where did they stay? कहाँ ठहराया था Prophet ने इनको? मस्जिद नबवी के अंदर. Understand? और दूसरी चीज ये कि they were worshipping according to their religion, directing towards Masjid al-Aqsa.
Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say anything to them. ये religious harmony और tolerance की तरफ डिस्कशन पे जाता है. तो ये वहां पे इवेंट मेंशन हुआ है इन माय हैंडआउट, आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं. यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया. कैम्ब्रिज जैसा क्वेश्चन ट्रीटी विद क्रिश्चियंस ऑफ नजरान का पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन में दे सकते हैं. अभी आप वरी नहीं हो स्कूल लेवल के एग्जाम पे, बट जब आप कैम्ब्रिज की प्रिपरेशन करते हैं, डू नॉट स्किप दिस टॉपिक एज वेल. लेटर टू द किंग्स, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बदर, बहुत ट्रेंची सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं. प्रॉफिट्स इंटरेक्शन विद द नॉन मुस्लिम्स आफ्टर माइग्रेशन, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा. मूविंग ऑन टू वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉसिबल 10 मार्क क्वेश्चन. पहले मैं पूछता हूँ, आई वांटेड टू हाइड दैट आंसर फर्स्ट. प्रॉफिट्स इंटरेक्शन विद क्रिश्चियंस, इसमें आप पहले मक्की लाइफ सोचें और फिर मदनी लाइफ, वन बाय वन. यस, बहिरा, वर्का बिन नौफल, वो वन हो गया. बहिरा, वर्का बिन नौफल, यस, ग्रेट. मुझे याद है, बाकियों को तो नहीं पता है. और हदीस नहीं है, कुरान का वर्स है. मैं पहले वो बता दूं, बड़ा हाई लेवल का पॉइंट है वो. नजाशी भी है, लेकिन जो पॉइंट इब्राहिम ने बताया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. ये एक वाकया है जो मैं डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा था. इब्राहिम ने इसकी तरफ थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है. वो वाकया ये है, माइग्रेशन हो रहा था. माइग्रेशन तो थोड़े पहले की बात है. कुरान की रिवर्स रिवील हुई होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. सूरह रूम की वर्सेस है, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम, द रोमन्स गॉट डिफीटेड फी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून. थोड़े ही अरसे के बाद वो दोबारा विक्टोरियस हो जाएंगे. ये कुरान की वर्स है. हजरत अबू बकर ने एक किसी जियो या नॉन मुस्लिम के साथ ये चैलेंज किया, कमिट किया, और उसके ऊपर एक तरह से उस वक्त बेट अलाउ था. बेट किया कि अगर ही वाज नॉट बिलीविंग, ही सेड हाउ इज इट पॉसिबल. हजरत अबू बकर ने एक नॉन मुस्लिम, आई डोंट नो वो कुरैशी था या जियो था, उसके साथ ये बेट किया, और वो बंदा बिलीव नहीं कर रहा था. उस बीच में माइग्रेशन का ऑर्डर आ गया. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इंस्ट्रक्टेड कि आप माइग्रेट करके चले जाएं. ठीक है. When he migrated, जैसे ही वो माइग्रेट करके जाने लगे, हजरत अबू बकर से आप तो चले जाएंगे, ये शर्त कौन पूरी कर रहा है? अबू बकर से अगर ये गलत हुआ, मैं खुद आके आपको पे बैक करूंगा. और ये वाकया जो है यहाँ लेकिन जरूरी नहीं है. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन ऐड इट, बट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्ट फर्स्ट. ये देखें, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? बहेरा आएगा, वरका बिन नौफल आएगा, नीगस नजाशी, यू स्पोक अबाउट इट. सूरह रूम के ऊपर कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज गोइंग टू बी डिटेल्ड वन एंड यू नीड टू लिंक इट. थोड़ा सा आई एग्री, बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे, वी नीड अ प्रॉपर डेवलपमेंट के कुरान हैज स्पोकन अबाउट दीस पीपल, और हज़रत अबू बकर का लिंकेज के साथ जाता है. यहाँ पे विजिट टू ताइफ में क्रिश्चियन स्लेव, क्या नाम था उसका? क्रिश्चियन स्लेव एट ताइफ, अदास भी आएगा. ठीक है. उसके बाद आपने प्रॉफिट के लेटर टू किंग्स आएंगे. फिर उसके बाद अच्छा, ये जो पॉइंट है ना नजाशी का, नजाशी के साथ तीनों पॉइंट्स डेवलपमेंट है. ये रिफ्यूज टू द मुस्लिम्स, accepted Islam when Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallallahu alaihi wasallam invited him, and then Prophet performed his funeral prayer, जो गायबाना नमाज़ जनाजा है. अब यहाँ पे इसको यही कर सकते हैं. फिर उसके बाद अगेन treaty with the Christians of Najran. You will talk about वलीद और उत्बा और शीबा का जो स्लेव है अदास, उसको भी आप मेंशन करेंगे. और बैटल ऑफ मौता, you remember battle of Mauta? The letter was sent to the Roman emperor Rastin, which a Muslim delegation was intercepted and he was killed. We will connect it with that one. Tabuk, again connected with this thing. Or Prophet sallallahu alaihi wasallam, one of the wife, her name was Maria. She was given as a captive slave, और बाद में फिर जो है वो you will connect that one as well. तो ये सारे points आपके 10 mark के question के अंदर. Cambridge never asked this question, but there is a chance they can ask it, and if they ask it, that's going to be the outline. अभी तक नहीं आया, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी. और ये वो क्वेश्चन है जो पिछले साल अनएक्सपेक्टेड आया था. वी डिस्कस्ड अबाउट इट, लेटर टू किंग्स टॉपिक. ये ऑलरेडी हमारी डिस्कशन में कवर हो चुका है. पोस्टर सिस्टर जो थी, देखें बनु हवाजन और बनु सकीफ जो है ना, उसमें डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो होता था. इतनी डेप्थ नहीं है ओपिनियन, स्कॉलरली ओपिनियन, वी डोंट नीड टू नो टॉक अबाउट डिस्कशन. टेस्ट मैंने आपके खाली अभी यहाँ वाले में से चेक किया, वो बाकी बातें हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन वालों को चेक करके भेज दिए, और जो फेस टू फेस में दोनों आयांस के खाली चेक हुए हैं. तो एक हो गया, मैं देता हूँ अभी थोड़ी देर में. ठीक है, बिकॉज आई हैव टू मेक एंट्री विद मी एज वेल. मॉडल ऑफ एक्सीलेंस आई विल स्टार्ट इट लेटर, अनदर डे, जब हम बहुत सारे टॉपिक्स कर रहे होंगे. उस बीच में मैं आपको जब
चैलेंजिंग टॉपिक्स चल रहे होंगे तो ये मैं उस पर कवर करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको मदनी लाइफ बहुत हेल्प करेगी मॉडल ऑफ एक्सीलेंस के टॉपिक में। मक्की एंड मदनी लाइफ आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद इट, बट टुडे आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक जैसे टॉपिक एट अ टाइम करना कई दफा कंफ्यूजिंग हो जाता है। We started Quranic passages, we will go with model of excellence gap के बाद बीच में करवाऊंगा, ठीक है। तो we started passages discussion, we are working on it। मैं randomly passages अभी आपको बीच में करवाऊंगा, but my today's task is here and this is called history and importance of Quran. Which question is it in the paper history and importance Quran? History and importance of Quran. Paper 1, Paper 1, question number 2 and 2. 1 both. I'm talking about only this part. Passages अभी नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। Question 2. Question 2, कंपल्सरी क्वेश्चन जो होता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 इन ही टॉपिक्स में से आता है, इसके अलावा नहीं आता। व्हाट आर द टॉपिक्स, थोड़ा सा यहाँ फोकस कर ले। फर्स्ट वही, ये आप लकी हैं, अगर ये आ गया तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। हालांकि ये नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में अभी अभी आ गया है, अक्टूबर नवंबर 2025 में। बड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आप उसको वहां से समझ सकते हैं। ले। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था वेज ऑफ रेवलेशन। वेज ऑफ रेवलेशन भी आ जाता है उसके अंदर, और ये हम डिस्कस करेंगे अभी। देन वी हैव कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान, देन वी हैव थीम बेस्ड क्वेश्चन, देन वी हैव background of the surahs. I'm sure most of you have went through this question as well, but we will discuss about that one. Sources of Islamic legal thinking, ये पेपर 1 के क्वेश्चन 2 में भी आता है और पेपर 2 के क्वेश्चन 2 में भी आता है। दो क्वेश्चंस कैम्ब्रिज बैक टू बैक दे रहा है अभी पेपर्स में, एक सोर्सेज ऑफ लॉ और दूसरा थीम बेस्ड क्वेश्चन। और बच्चे थीम बेस्ड क्वेश्चन से आप चढ़ गए कि इतना कंसिस्टेंटली क्यों आ रहा है। आई होप ना आए आपके पेपर में, अगर आता है कुछ के लिए इजी है, कुछ के लिए मुश्किल है। वी विल टॉक अबाउट दैट वन। Merits of selected passages is never asked. I just added it for a reason, क्योंकि ये 4 मार्क्स में हमें कहीं हेल्प करता है। तो बाकी हमारी डिस्कशन ये। पहला टॉपिक event of first wahi, we will not do that one because we did it already. When did we do? When we were doing Prophet's life in Makkah, call to prophethood, cave of Hira का जो event है वो हम दोबारा repeat नहीं करेंगे। We are going to start with the topic of revelation of Quran from 6:10 till 6:32. What do we mean by that? We have to discuss about मैं आपको ना क्वेश्चन की आउटलाइन यहाँ पे आई थिंक बनी हुई नहीं है। फर्स्ट दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट आपने पहले इसकी आउटलाइन समझनी। If we have a note on the way Quran was revealed on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, how we will structure our answer, थोड़ा सा आउटलाइन बताऊंगा, फिर मैं मॉडल डिटेल्स पे आता हूँ। आपका जो पहला पैराग्राफ होगा which is going to cover Quran was not revealed at once, it was revealed in portions. Was it revealed in a book form or not in a book form? It was not revealed in a book form, it was revealed over a period of 23 years on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And its revelation started from its revelation started from the first experience from the cave of Hira. Prophet sallallahu alaihi wasallam was in the cave of Hira, and you are going to write first experience in just 3 to 4 lines. No, I'm talking about ways of revelation on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The ways Quran was revealed on Holy Prophet. I'm talking about first paragraph of your answer. आपने first paragraph में क्या लिखना है? Not revealed in book form, not revealed at once, revealed in portions. And then you're going to talk about it started from first revelation. First revelation की detail नहीं लिखनी. There are many students who start writing the revelation details. It's not required. 3-4 lines से ऊपर आपने नहीं जाना है. Then what you're going to write, same paragraph है. We are still on first paragraph. आपने लिखना है there was a gap. Briefly gap के लिए आपने statement देनी है. And then also talk about फतरतुल वही, you can write it. Then second revelation, कौन सी second revelation है prophet पे reveal हुई है? सूरह मुदस्सिर। excellent, आपने सूरह मुदस्सिर briefly 2-3 लाइन में ये पॉइंट वाइंड अप करना है। आपका पहला पैराग्राफ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाए। सेकंड पैराग्राफ में आपने थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझना है। सेकंड पैराग्राफ में आपने एक चीज को एक्सपैंड करना है। हाउ द रेवलेशन केम, Did it come via angel or it came without angel? ये आपकी डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपको भी मॉडल आंसर दिखाता हूँ। आपके सेकंड पैराग्राफ में वेज ऑफ रेवलेशन पे सारा फोकस है। How did it come to Holy Prophet? Did the wahi came to Holy Prophet by angel or without angel? You are going to mention both methods were there. If the revelation came by angel, there are 2 ways. What were they?
इन ह्यूमन फॉर्म, आप उसकी एग्जांपल दे दें, फर्स्ट वही इन द केव, और एन इन रियल फॉर्म। एग्जैक्टली, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, अभी सीक्वेंस में जाने दें। इन ह्यूमन फॉर्म और इन रियल फॉर्म। अगर आप ह्यूमन फॉर्म की बात करते हैं तो हजरत दहिया कल्बी, गुड पॉइंट यहाँ पे बताया, हजरत दहिया कल्बी की फॉर्म में आते थे, होली प्रॉफेट हजरत जिब्राइल। और अगर वो रियल फॉर्म में आते थे, फर्स्ट वही के बाद एंजल जिब्राइल बाहर आसमान पे जो नजर आए थे, या सेकंड वही से पहले हजरत सूरह मुदस्सिर से पहले आसमान पे चेयर पे बैठे हुए थे इन रियल फॉर्म। ओके, दो वेज हो गए। अब आ जाते हैं वर्सेस रिवील्ड विदाउट एंजल। एक फॉर्म थी ड्रीम्स। प्रॉफिट यूज्ड टू रिसीव रेवलेशन वाया ड्रीम्स। आप ड्रीम्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा सीक्वेंस में आ रहा हूँ ताकि पॉइंट मिस नहीं हो जाए। उसके बाद आपने लिखना है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिसीव रेवलेशन समटाइम्स डायरेक्ट रेवलेशन। डायरेक्ट रेवलेशन होली प्रॉफिट को अल्लाह ताला ने खुद रिवील की कब? इसरा एंड मिराज में, सूरह बकरा की लास्ट 2 वर्सेस। ये एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढता है। और लास्ट उस पे रिंगिंग बेल साउंड या बजिंग बेल साउंड। मैं उसको भी डेवलप यहाँ नहीं कर रहा हूँ, समझ ले उसको, रीजन है। कहीं कहीं मैं ब्रेक लगाता हूँ। अच्छा, म्यूट कर लें अगर किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, मेरी आवाज इको बैक कर रही है, प्लीज। ओके, अच्छा, तो 4 टाइप्स हो गई। आपने इब्राहिम जो पॉइंट डेवलप किया थोड़ा सा, मैं उसकी तरफ अगले पैराग्राफ में आने वाला हूँ। हमने अभी कौन कौन से टाइप से मैं दोबारा बता दूं ताकि आपसे मिस नहीं हो। 5 वेज हैं, सुन लें। एक वे है एंजल इन ह्यूमन फॉर्म, दूसरा है एंजल इन रियल फॉर्म, तीसरा है बजिंग बी साउंड या रिंगिंग बेल साउंड, चौथा है ट्रू ड्रीम्स, और पांचवा है डायरेक्ट रेवलेशन ऑन होली प्रॉफिट। ये आपका आंसर का सेकंड पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ्स हो गए। अब आपका अच्छा खासा आंसर बड़ा हो चुका है, आपका आंसर ऑलमोस्ट 1.5 पेज पे जा चुका है। अगला थर्ड पैराग्राफ जो है ना, प्रॉफिट की सेंसेशंस के ऊपर आपने फोकस करना है। व्हाट डू वी मीन बाय द सेंसेशन? हाउ डिड प्रॉफिट फील? यस, मैं इट्स अ गुड पॉइंट। अगर मिस होगा आपने बताना है, ठीक है। तो हाउ डिड प्रॉफिट, मैं बीच में पॉइंट्स पूछूंगा, ठीक है, लेकिन मैं पूरा अगर पूछूंगा ना वो सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है। हाउ डिड प्रॉफिट यूज टू फील के ऊपर आपने एक पूरा पैराग्राफ बनाना है और 2 चीजों पे आप फोकस करेंगे। प्रॉफिट की 2 सेंसेशंस हैं और उसको आप डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। वो 2 फीलिंग्स क्या है? एक यूज टू फील कोल्ड एंड शिवर, गुड, और दूसरी फीलिंग यूज टू फील हैवी। आपने इन 2 पॉइंट्स को ही लिखना है, ठीक है। प्रॉफिट यूज टू फील हैवी, यूज टू कोल्ड एंड शिवर। एक और क्या सर? वो स्वेट इन द फॉर्म ऑफ पर्ल्स। स्वेटिंग भी आ सकते हैं। स्वेट नहीं, बिल्कुल पर्सपिरेशन है। दोनों डेवलप कर सकते हैं, वो पॉइंट स्वेट वाला भी ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रेफरेंसेस जो है ना, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे पहले बोलने दें। हजरत फातिमा यहाँ नहीं है, हजरत आयशा की हदीस। आप थोड़ा सा समझ लें। आपने 2 फीलिंग्स बता दी, बल्कि तीसरी भी हमारे पास आ गई। वो डेवलपमेंट है शिवरिंग एंड स्वेटनिंग एज वेल, क्योंकि जो प्रॉफिट के ऊपर एक प्रेशर होता था, वेट होता था, उसकी वजह से ही यूज्ड टू स्वेट। अब देखें, हमें इसकी रेफरेंसेस चाहिए। आपने कह दिया ना कि प्रॉफिट की फीलिंग है, सपोर्टेड बाय द रेफरेंस। प्रॉफिट यूज्ड टू फील हैवी, इसके अंदर एक तो रेफरेंस है, कुरान की वर्स है हमारे पास। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, इफ वी हैव रिवील्ड कुरान ऑन अ माउंटेन इट मस्ट हैव स्कैटर्ड इनटू पीसेस। दूसरा हजरत आयशा की हदीस, सॉरी हजरत आयशा की यानी लिखेंगे हजरत ज़ैद बिन साबित की हदीस आप लिखेंगे, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sitting next to him, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवीलेशन स्टार्ट हो गई, और जैसे ही रिवील होना शुरू हुई, सर उन्होंने कहा था कि मेरा वेट लेट मी कंप्लीट, 1 मिनट में आ रहा हूं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड फीलिंग हैवी, और उनका वेट जो है वो किस तक गया? हजरत ज़ैद बिन साबित। My bones, I felt that my bones are going to be crushed due to the weight. दूसरा आपने यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना है कैमल का। प्रॉफिट की कैमल का क्या नाम है? सर कस्वा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैमल पे जब बैठते थे तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवलेशन आती, द कैमल यूज्ड टू सिट डाउन। अंडरस्टैंड? अभी हमने डेवलपमेंट किस पॉइंट की? प्रॉफिट यूज्ड टू फील हैवी, और 2 रेफरेंसेस आ गए। फिर हमने कहा प्रॉफिट यूज्ड टू परस्पायर या प्रॉफिट यूज्ड टू स्वेट, उस पे रेफरेंस हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा वाली हदीस आ जाएगी। आपका तीसरा पैराग्राफ बड़ा स्ट्रांगली डेवलप हो गया। समझ आ रहा है? अब चौथे पैराग्राफ में आपको सजेशन है, आपकी चॉइस है, आप किस तरह से भी डेवलप कर सकते हैं। चौथे पैराग्राफ में आप मक्की और मदनी वर्सेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। चौथे पैराग्राफ में आप डिस्कस कर सकते हैं वर्सेस वर रिवील्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट की जो डिफरेंट सिचुएशंस थी और फीलिंग्स थी, आप उसको भी डेवलप कर सकते हैं। सॉरी, सिचुएशन कोई बता ही नहीं। आपने एग्जांपल देनी है कि हाउ वर्सेस वर रिवील्ड अकॉर्डिंग टू
हाँ भेज रहा हूँ थोड़ी देर में बस, ठीक है? यस जी के जाए, जल्दी हैं। फोर्थ पैराग्राफ में मैंने आपको क्या क्या बताया, मक्की और मदनी के बारे में आप लिख सकते हैं कि वर्सेस वर रिवील्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स टाइम पीरियड के प्रॉफिट मक्का में या मदीना में। मक्की वर्सेस के अंदर अल्लाह की जो वर्स रूलिंग्स थी वो थी आर्टिकल्स ऑफ फेथ में। मदनी में कौन सी थी? पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिहाद, हज, ज़कात, ये किसमें जाता है? मदनी में। Verses were revealed according to situation, according to the circumstances. इसमें एग्जाम्पल सूरह कौसर, सूरह दोहा, दैट्स सूरह दोहा, ठीक है? और आखिर में आपके आंसर में एग्जामिनर एक चीज ढूंढेगा जो आपने मिस नहीं करनी, वो है लास्ट रेवलेशन ऑफ कुरान। व्हाट वाज द लास्ट The रेवलेशन? last seven, which is today we have. टुडे, दिस डे वी हैव परफेक्टेड रिलीजन। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने किस क्वेश्चन की बात की? आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अब ये मॉडल आंसर नीचे अवेलेबल है, ठीक है? माय मॉडल आंसर माइट बी नॉट दैट मच हेल्पफुल अगर आपकी अपनी आउटलाइन बनी हुई है। आपको मैंने 4 पैराग्राफ में आंसर स्ट्रक्चर करके बता दिया। अगर आपका आंसर प्लान्ड है, आप सारी इंफॉर्मेशन उसकी एक जगह कर सकते हैं। आप 4 पैराग्राफ में भी बना सकते हैं आंसर। You can make an answer of 5 paragraphs as well. So you can see in my handout, first paragraph is talking. एक चीज और है which I have found in some students' answer, और बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा higher level है। Some students begin their answer by saying Quran was revealed in 2 stages, which is right answer by the way. What are the 2 stages? मैं आपको बता दूं क्योंकि आप कुछ बुक्स में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। कुरान का एक स्टेज है प्रिजर्व टैबलेट, लौहे महफूज से लोएस्ट हेवन पे रिवील होना। ये हुआ है नाइट ऑफ पावर, लैलतुल क़द्र के अंदर। Then it was revealed on the heart of Holy Prophet. That's the second stage in portions. तो ये अगर आप लिखते हैं तो it's not a big issue क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल-क़दर है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, we have revealed Quran in the night of power. तो स्कॉलर उसको कनेक्ट करते हैं from लौहे महफूज to the lowest heavens. lowest heavens से over a period of 23 years ये सारा रेफरेंस आपका आ जाएगा। ये मैंने अच्छा कुरान की ऑथेंटिसिटी और प्रिजर्वेशन के ऊपर भी रेफरेंस है। फर्स्ट रेवलेशन, सेकंड रेवलेशन, पैराग्राफ 1 फिनिश। माय हैंडआउट टॉक्स अबाउट प्रॉफिट सेंसेशंस फर्स्ट, देन वेज ऑफ रेवलेशन। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले वेज ऑफ रेवलेशन पे जाएंगे और सेंसेशंस पे पैराग्राफ्स बनाएंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू विल मूव फर्दर यू विल फाइंड आउट मोर पॉइंट्स हियर। वो भी आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। यू कैन सी surahs and their background, and you will also talk about the last revelation revealed on Holy Prophet. I think यही पे